So today we are going to start exercise 9.6. Now this exercise is based on linear differential equation. Correct? So if you have understood the concept very carefully, तो I don't think so कि हमें exercise में कोई इतनी difficulty feel होगी. Correct? So for instance, let's start with question number 2. There are so many questions in the exercise again. We will not be solving each and every problem. और कुछ प्रॉब्लम्स में आपको हिंट दूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स का आपको मैं पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा. करेक्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 12. इन दोस क्वेश्चंस वी जस्ट हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. सो आई एम गोइंग विद क्वेश्चन नंबर 2. इट इज गिवन समथिंग लाइक दिस. dy by dx plus 3y is equals to e raised to minus 2x. dy by dx plus 3y equals to e raised to minus 2x. Now I have to solve this differential equation. Now generally question won't says that solve by linear differential equation. Now we are thinking of linear differential equation just because we are solving that particular topic. है ना. But exam में ऐसा लिखा नहीं होगा कि solve using linear differential equation. That will be up to us to decide the method. तो यहाँ पे हमें linear क्यों पता चल जाएगा? Because it is already in the form of linear differential equation. तो आप चेक कर सकते हो कि this is in the form of, कौन से फॉर्म में है? dy by dx plus py is equals to q, जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा p is 3 and q is e raised to minus 2x. So we don't even need to narrow it down to linear differential equation form. It is already given in that particular form. So I got p and q. So immediately I will go for integrating factor if. E raised to integral of p dx. So e raised to p. What is the value of p? It is simply 3 dx. So integral of 3 will be 3x. It's very simple. So I got integrating factor. And then if you remember the steps which we did in the last class, तो मैंने डायरेक्ट कहा था then the solution is, या solution of given differential equation is, जनरल solution बोल दो जो भी. कैसे याद किया था? y into if is equals to integral q into if dx plus c. Isn't it? Just simply put it in this form, we'll get our answer. So it will become y e raised to 3x integral e raised to minus 2x into e raised to 3x dx plus c. Now integral is very easy. ये दोनों तो कट हो जाएंगे पावर में, तो एक ही e raised to x बचेगा. So that will simply give us e raised to x only. Integral of this particular will be e raised to x plus c. Now if you want, you can give that e raised to 3x on the other side. So it will become something like this. Y equals to e raised to 3x ऊपर जाएगा minus 2x plus c e raised to minus 3x. This will be your general solution of this differential equation. Very simple and straightforward problem. कोई difficulty नहीं होनी चाहिए. Correct? चलो, let's move ahead towards the question number 4. Now you may be thinking, sir, third. So third वाला बहुत easy है, कुछ ज्यादा easy है. 1 upon x will be your p and x square will be your q. आप लोग easily solve कर लोगे. So that's why I am leaving it to you. Fourth भी easy है, but I can't leave each and every problem for you. है ना? So we will definitely solve this kind of questions. So in the fourth one, it is given dy by dx plus y into sec x. Basically थोड़ा ध्यान से देखना, it is sec x into y. अब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यू विल फील लाइक के x और y प्रोडक्ट में है, बट ऐसा नहीं है. sec x के साथ y प्रोडक्ट में है, नॉट x एंड y आर इन प्रोडक्ट. इज इक्वल्स टू 10x. और एक बहुत बड़ी कंडीशन लिखी हुई है that your x lies between 0 से π/2. That means it is in the first quadrant. करेक्ट. ऐसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए फील नहीं होगा कि अच्छा कंडीशन की जरूरत है, बट इट इज नीडेड. बट जैसे मैंने कहा कि सॉल्व करते हुए हमें फील नहीं होगा. सो आपको यहाँ पे कोई इतना पता नहीं चलेगा कि कंडीशन का मीनिंग और रीजन क्या है देने का. करेक्ट. चलो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एज यू कैन सी, दिस इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ अगेन dy by dx plus p of x p into y equals to q, है ना. So अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं where p equals to sec x and q equals to 10x.
एंड इफ आई फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी कि e रेस टू sec x dx. एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x? अरे बाप रे, ये कैसे याद आएगा यार? तो होता नहीं है हमें जनरली, है ना, बट जिन्हें याद है उनको अच्छे से याद आ जाएगा कि e रेस टू इंटीग्रल ऑफ sec x होता है log मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस tan x. सो ऑल्सो वी नो दैट कि अगर e के पावर में log है तो जो टर्म है वो डायरेक्ट आंसर बन जाती है. So it will be definitely sec x plus tan x. And then we'll go for solution. क्या फॉर्मूला? y into if is equals to integral q into if dx plus c. if अब सबको पता चल गया है, isn't it? It's a big term, बस थोड़ा सा ध्यान रख करके लिखेंगे, बाकी है इजी, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है ना. फिर भी मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल्स टू इंटीग्रल q की वैल्यू tan x है और इंटू sec x प्लस tan x dx. डेफिनेटली प्लस ही रहेगा, है ना. अब देखो यहाँ पे तो ये सेम है, y इंटू sec x प्लस tan x, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं. वहां पे होगा क्या, जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बिकम sec x tan x प्लस, करेक्ट, sec x tan x. ये हो गया होगा, आई होप. नहीं हुआ हो तो कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है, डोंट वरी, है ना. sec x tan x प्लस tan स्क्वायर x dx. tan स्क्वायर x dx. चलो sec x tan x का तो डायरेक्ट इंटीग्रल अवेलेबल है sec x, बट व्हाट अबाउट tan स्क्वायर x? तो उसका भले इंटीग्रल डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम उसे sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं. sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा tan x और माइनस 1 का x प्लस c, और यहाँ पे y इंटू sec x प्लस tan x. नाउ सी, आई वोंट टेक दिस टाइम sec x प्लस tan x ऑन द अदर साइड, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सिंप्लीफाई. कर सकते हैं, देखो ये पूरे के पूरा यहाँ ले जाओ तो इसमें कट हो जाएगा, माइनस x के नीचे बचेगा, बट दैट विल मेक इवन मोर कॉम्प्लिकेट फॉर अस. So we can leave it to this particular form as our general solution. Correct. Please note down these two problem carefully. I know कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें रिमूव हो गई है, तो वो आप लोग थोड़ा अपने हिसाब से इंटीग्रेट करके या रिवाइंड करके देख सकते हो. करेक्ट. Please take a note of these two problems. Let's go for the next one, which is question number 5. क्या दिया हुआ है? cos square x dy by dx. cos square x dy by dx plus y equals to tan x. Now again what we are trying to do over here is कि हमें somehow ये जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में मिल जाए. लेकिन एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि हमें पहले से ये क्वेश्चन के अंदर बोला नहीं होगा कि दिस इज इन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म और सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट्स काइंड ऑफ थिंग विल नॉट बी गिवन. तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि अच्छा हाँ देखो यहाँ पे अगर इसे इग्नोर करें ना तो आई कैन फील लाइक दिस dy by dx प्लस y इक्वल्स टू tan x. इट लुक्स लाइक इनटू द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ऐसा सोचे कि भाई पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं. करेक्ट. अगर मैं पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो लेट्स से कि हमें किस तरह की टर्म मिलती है और किस तरह से हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट करवा के p q वगैरह फाइंड करके आगे बढ़ते हैं. करेक्ट. सो सबसे पहले डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय cos स्क्वायर, तो y अपॉन cos स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू tan x इंटू sec स्क्वायर x. चलो ठीक है. अब जब इसे कंपेयर कर रहे हैं तो हमें p की वैल्यू मिल रही है sec स्क्वायर x एंड q की वैल्यू मिल रही है tan x इंटू sec स्क्वायर x. सिंपल. अच्छा ठीक है, चलो p और q भी हमें तो मिल गया, अच्छी बात है. तो अगर जैसे ही p मिलेगा हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू sec स्क्वायर x dx. व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x? अभी सॉल्व किया, tan x होता है, राइट. तो इट विल बी e रेस टू tan x. ये होगा आपका i. फिर हम फाइंड करेंगे उसका सॉल्यूशन यानी कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या है फॉर्मूला? y इंटू if यानी कि e रेस टू tan x इज इक्वल्स टू q यानी कि tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू e रेस टू tan x dx.
एंड डेफिनेटली फॉर्मूला में प्लस सी है तो हमें वो रखना है, करेक्ट। नाउ लेट्स से कि इसे आई बोल देते हैं, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई रेज टू 10x इंटू 10x sec square x dx। इसे सॉल्व करके यहां पे रिप्लेस कर देंगे एंड देन विल गेट द जनरल सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा 10x इक्वल्स टू टी, एम आई राइट और नॉट, है ना। क्यों, तो देखो 10x की वैल्यू t, तो ये t हो जाएगा, डेरिवेटिव sec square x dx विल बिकम dt और e रेज टू t, है ना। सो डेरिवेटिव विल बी sec square x dx इक्वल्स टू dt। तो आपका I जो है इट विल लुक लाइक e रेज टू t इंटू t dt। सो वी कैन इजीली अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब ऐसे कोई फॉर्म आता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वो बहुत इजी काम रहेगा हमारे लिए। सो I इक्वल्स टू कैसे करेंगे, तो कि भाई ILATE एक्सपोनेंशियल इज द लास्ट वन, तो आई विल कंसिडर दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e रेज टू टी का इंटीग्रल e रेज टू टी माइनस इंटीग्रल में t का डेरिवेटिव 1 e रेज टू टी का t dt। सो दिस विल गेट मी माइनस e रेज टू टी। ये हो गया आपका I। t से वापस 10 में आ जाओ, x में आ जाओ, करेक्ट। सो इट विल बिकम 10x माइनस 1 इंटू e रेज टू 10x, मतलब मैंने e रेज टू टी कॉमन निकाल दिया एंड आई विल रिप्लेस ओवर हियर। So now y into e raised to 10x is equals to इंटीग्रल सॉल्व करके हमें मिला है e raised to 10x into 10x minus 1 plus c, and if you want you can really take this in the denominator। तो ये हो जाएगा y equals to 10x minus 1 plus c into e raised to minus 10x। ये होगा आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रहा है, जो हमारा टास्क है ना वो सेम है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को लिनियर में कन्वर्ट करो, इफ इट इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन द फॉर्म ऑफ लिनियर, वो हो गया। उसके बाद पी क्यू फाइंड कर लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए तो आप सॉल्यूशन तक पहुंच पाओगे, वरना यहां पे आके आपकी गाड़ी रुक जाएगी। सीधी सी बात है, यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन। इफ यू डोंट नो दैट देन डेफिनेटली इट विल नॉट हेल्प, करेक्ट। तो प्लीज मेक श्योर करो कि आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आए टू अंडरस्टैंड इंटीग्रल्स। इसीलिए पहले वो चैप्टर हो चुका है ना। तो वो चैप्टर होने के बाद ही डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको समझ में ज्यादा आएगा, अदरवाइज यू विल ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट, करेक्ट। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन विल मूव फर्दर। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। What do we have? X log x dy by dx, x log x dy by dx plus y equals to 2 upon x log x। चलो ठीक है ना। अब ऐसी इक्वेशन देखोगे ना तो आपको नॉर्मली अब आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके चलो ये हमारे से सेपरेबल वेरिएबल में होना है, वेरिएबल सेपरेबल में। तो यू मे बी थिंकिंग लाइक कि चलो ठीक है, एक बार ये y को इधर ले जाओ, ये सब इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, है ना। सो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट हमें फील होता है, बट समटाइम्स आई टोल्ड यू कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज नॉट नेसेसरी कि एक ही मेथड से हो, इट मे बी सॉल्व बाय 2 डिफरेंट मेथड्स एज वेल, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे हम इसको लीनियर से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, लेकिन लीनियर में होने के लिए dy by dx का कोफिशिएंट होना चाहिए 1। सो वी हैव टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय x log x। तो ये हो जाएगा y अपॉन x log x इज इक्वल्स टू, जब इसके डिवाइड में x log x लिखोगे log x गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट 2 by x स्क्वायर, है ना। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे आपको p मिलेगा 1 अपॉन x log x और आपको q मिलेगा 2 अपॉन x स्क्वायर, जिससे if आप फाइंड करोगे तो इट विल बी 1 अपॉन x log x dx। जस्ट थिंक लाइक दिस कि log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है जो ऊपर सेट हो रहा है, क्योंकि ये x ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसका आंसर आ रहा है e रेज टू log ऑफ log x। सो विल डेफिनेटली राइट log x, क्योंकि हमारे लिए तो फिर वो log x ही रहेगा, करेक्ट। चलो ठीक है, ये सब हो गया। अच्छा, आपको उसमें थोड़ी डिफिकल्टी फील हो तो आप ऐसे साइड पे रफ में चेक कर सकते हो कि भाई लेट्स से log x इक्वल्स टू t,
तो 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो 1/x dx के लिए dt हो जाएगा और ये हो जाएगा t। अब 1/t का इंटीग्रल log t और t की वैल्यू वापस से log x रख दी। ऐसे आप लोग सोच सकते हो, सिंपल। चलो अब आगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो कि भाई y इंटू आई एफ यानी कि log x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर log x dx प्लस c। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये log x ऊपर log x है, नीचे एक्स स्क्वायर है। हाउ आर वी सपोज टू सॉल्व सच काइंड ऑफ इंटीग्रल। चलो एक चीज तो है कि 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, है ना। फिर भी बचा ऐसा ना 1/x स्क्वायर log x dx प्लस c। कुछ मिसिंग नहीं हो रहा है ना। x log x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2/x स्क्वायर। हमारा आई एफ आया ई रेस टू इंटीग्रल 1/x log x dx, तो इसका हो जाएगा ई रेस टू log ऑफ log x। तो डेफिनेटली log x विल बी आई एफ। यस, अब बताओ अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन log कम्स इन द टर्म, whenever log comes in the term, consider that as a first function और इसे दूसरा फंक्शन ले लो। It will be very easy for us to solve. Let me help you. Let's say हम इसको बोल देते हैं I इंटीग्रल 1/x स्क्वायर log x dx। करेक्ट। तो जैसे मैंने कहा कि 1/x स्क्वायर log x में एक log x है, we'll consider log x as a first function। जो भी फर्स्ट फंक्शन होता है इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स विल टेकन आउट 1/x स्क्वायर dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, करली ब्रैकेट में रख देते हैं 1/x स्क्वायर dx करली ब्रैकेट क्लोज dx। सिंपल। थोड़ा और इधर से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x। व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर, पावर में जाएगा -2 + 1 -1 यानी कि -1/x माइनस इंटीग्रल ये 1/x, उसका इंटीग्रल होगा -1/x dx। ये हो गया माइनस log x/x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल हमने अभी अभी किया, कितना होता है -1/x। सिंपली लिफ्ट दिस, पुट ओवर हियर। सो आपके लिए क्या हो गया y log x इज इक्वल्स टू, लेट्स से -2/x कॉमन निकाल देते हैं, तो इट विल बिकम log x प्लस 1 एंड प्लस c। 2 तो है ही बाहर, हमने यहां से -x भी बाहर निकाल दिया। सो सिंपली ब्रैकेट में बचेगा log x प्लस 1 प्लस c। नाउ आई कैन कीप दिस एज माय जनरल सॉल्यूशन, आई डोंट माइंड एट ऑल, है ना। क्योंकि अगर log x नीचे लाने गए ना तो डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे फिर c में भी आपको नीचे log x रखना पड़ेगा। बट इफ यू वांट यू कैन लिटरली टेक इट, क्योंकि यहाँ पे कट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका बचेगा सिंपली 2/x, फिर वहां पे बचेगा -2/x log x प्लस c/log x। अब ये सब करने का कोई मतलब नहीं है, यू कैन कीप दिस एज आवर आंसर। करेक्ट। सो देखो मोस्टली प्रॉब्लम देख रहे तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाने की जरूरत पड़ रही है ना। बट दैट इज नॉट द ओनली केस, मतलब इंटीग्रल आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट कुड बी बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इट कुड बी बाय सब्स्टिट्यूशन, इट कुड बी बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एज वेल। कोई भी कुछ भी मेथड आ सकती है। यू मस्ट नो हाउ टू इंटीग्रेट the given integral or the obtained integral form. Correct. Please take a note of this one and then we'll move further. Let's go for the next question number 8. Again it's a very very good question. 1 plus x square dy plus 2xy dx plus 2xy dx is equals to cot x dx. And definitely it says that x is not equals to 0. So अब यहां पे क्या हो रहा है, तो देखो समटाइम्स यू स्टार्ट अगेन थिंकिंग विद द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो पहला तो ये x और y स्प्लिट नहीं होना है, कुछ भी कर लो। ओ सॉरी, यहां पे dx नहीं आएगा, देयर वोंट बी dx ओवर हियर, क्योंकि अगर वहां dx होगा ना तो गलती से भी नहीं होना है। करेक्ट। बट मेरे हिसाब से आपकी टेक्स्ट बुक में dx लिखा है, बट आई डोंट थिंक सो कि वहां पे dx आएगा। नो नो नो, नॉट पॉसिबल। वहां पे dx पॉसिबल नहीं है। लेट मी जस्ट, ओके, या इट विल बी, डेफिनेटली इट विल बी dx ओवर हियर। सॉरी,
हाँ रहेगा। क्यों रहेगा तो ध्यान से देखो, हम क्या करने वाले हैं, हम इस इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स से। अच्छा आपको ऐसे डिफिकल्टी फील हो रही हो तो देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू cot x minus 2xy dx. We can write like this as well. करेक्ट। अच्छा ठीक है, हमने ऐसा लिख तो लिया, बट अभी क्या करें तो कि इट विल बिकम dy by dx इज इक्वल्स टू cot x minus 2xy, और मैं दोनों को इंडिविजुअली 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रोवाइड कर रहा हूं बिकॉज आई हैव टू डिवाइड दिस वन, तो दोनों को मैंने सेपरेटली प्रोवाइड कर दिया। Now, this is dy by dx is equals to something of a function of x only, and here also function of x, but with that a y is present. So let's bring this on the other side. तो ये हो जाएगा dy by dx plus 2xy upon 1 plus x square equals to cot x upon 1 plus x square. ये हो गया आपका linear form dy by dx plus p into y equals to q. तो p हो जाएगा आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q हो जाएगा आपका cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही p और q मिलता है हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। सो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या आएगा, तो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर है ना, यानी कि आंसर विल बी सिंपली log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिससे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर बोल देंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की फॉर्मूला y इंटू आई एफ यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल q की वैल्यू cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ एंड dx प्लस c। तो ये दोनों कट हो गया, हाँ तो कितना बचा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ cot x dx प्लस c डेफिनेटली। नाउ व्हाट विल बी इंटीग्रल ऑफ cot x, तो कि भाई नहीं याद हो, सपोज बाय चांस यू फॉरगॉट द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल ऑफ cot x, तो कोई नहीं, cos बाय sin, sin का डेरिवेटिव ऊपर सेट हो जाता है, तो इट विल बी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू log sin x प्लस c. You can keep this as your general solution. We don't mind at all. This is our general solution. है ना। देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैंने इम्पोर्टेंट इसीलिए कहा कि भाई जस्ट लुकिंग एट इट यू मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ ये तो लीनियर से करना है ना। तो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बिकम इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप dx कंबाइन करोगे तो आपको ऐसा फील हुआ कि भाई सब सेपरेट तो हो रहा है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, बट दिस y कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये y को आप कुछ भी करके इधर नहीं ला सकते सेपरेट, तो वेरिएबल सेपरेबल का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। रही दूसरी बात तो कि भाई होमोजीनियस, तो होमोजीनियस में देखो मैंने कहा पावर सेम होने चाहिए हर एक टर्म के, तो एक्स स्क्वायर है x और y का पावर 1, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, पावर सेम नहीं है। सो अगेन होमोजीनियस में नहीं जा सकता, तो आपको समहाउ उस चीजों से आइडिया लगाना पड़ेगा कि अब वो दोनों से नहीं हो सकता, देन वी हैव टू गो फॉर द थर्ड मेथड। करेक्ट। और फिर इसे आप इजीली सॉल्व कर लोगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि प्रॉब्लम सिंपल है। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी डिफिकल्टी होगी, बस ये 3-4 स्टेप आपको थोड़े से संभाल के सॉल्व करने होंगे एंड देन यू विल बी इजीली सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस वन। Let's go for the next one, which is question number 9. Now again it is a good one. देखो क्या दिया हुआ है हमें, x dy by dx plus y minus x plus x y cot x is equals to 0. Now too many terms, so many, हाँ, x dy by dx plus y minus x plus x y cot x equals to 0. कुछ टर्म्स ज्यादा है, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान से काम चलाना पड़ेगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि लेट्स डिवाइड इट बाय x, क्योंकि डिवाइड बाय dx का जो कोफिशिएंट है वो x है, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, वी वांट टू हैव 1 ओवर दैट, तो पहले x से डिवाइड कर लेते हैं, तो इट विल बिकम dy बाय dx प्लस y बाय x माइनस 1 प्लस y cot x इक्वल्स टू 0।
चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, तो कि मैं ये 1 को तो उधर ले जाऊंगा, सो कोई इश्यू नहीं है मेरे लिए वो 1 है ना, बट आई कैन सी सम y कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म, सो इट विल बिकम लाइक दिस dy by dx प्लस 1 by x plus cot x into y is equals to 1, isn't it? That's what I can understand right now कि हाँ यही कुछ दिख तो रहा है. Yeah, so if we now consider this as a linear differential equation, तो p की वैल्यू होगी 1 by x plus cot x और q की वैल्यू होगी 1. That's okay, है ना? So integrating factor e raised to 1 by x plus cot x dx. तो e raised to 1 by x का इंटीग्रल log x प्लस cot x का अभी अभी हमने देखा log sin x. करेक्ट. अब लॉग एडिशन में है, यानी कि लॉग के जो वैल्यूज होंगे वो प्रोडक्ट में आ जाएगी x sin x, और e का पावर log x है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा x sin x. अब इसे रख देंगे सॉल्यूशन में, है ना, y इंटू if यानी x sin x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब q की वैल्यू तो 1 ही है तो इट डजंट मैटर, इंटू if यानी कि x sin x dx प्लस c. इसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा x sin x का? अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इजंट इट? अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही ये सॉल्व हो पाएगा, है ना. सो आई एम लिविंग इट फॉर यू पीपल. कोई ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं, सो आप लोग आराम से ट्राई कर सकते हो कि x sin x जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा. कंसिडर x एज अ फर्स्ट फंक्शन, sin x एज द सेकंड, x एज इट इज साइन का कॉस माइनस x का 1 साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन. उस तरह से आप इंटीग्रल्स खत्म कर सकते हो. सॉरी, साइन का माइनस कॉस इंटीग्रल है ना, डेरिवेटिव नहीं, सॉरी. साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होगा तो वो ध्यान से थोड़ा कर लेना, आपकी साइन कन्वेंशन में मिस्टेक ना हो जाए. करेक्ट. चलो, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9. नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच इज गिवन समथिंग लाइक दिस, x प्लस वाई dy by dx इक्वल्स टू 1. नाउ लेट मी से कि ये आपके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इसमें कुछ सोच पाओगे ना तब तक थोड़ी देर हो चुकी होगी. या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप अगर कुछ सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है. क्यों? तो टिल नाउ वॉट एवर द प्रॉब्लम वी डिड फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑल वेर बेस्ड ऑन द dy by dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q. अगर यहां पे ऐसा कुछ करना हो तो थोड़ा पेशेंसली पहले समझते हैं, फिर मैं बताता हूं कि होगा क्या. तो कि भाई मेरा टारगेट ये होता है कि dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. सो dy by dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस वाई. लेकिन जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है वो है dy by dx प्लस p ऑफ x p इंटू वाई. तो यहाँ पे क्या आप इस y वाली टर्म को इधर ले आ सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे? नॉट पॉसिबल. अब सोचोगे सर क्यों नहीं, कुछ और करते हैं ना, मतलब x माइनस वाई करके चेक करते हैं, या लेट्स टेक समथिंग एल्स. तो कितनी भी ट्राई कर लो, आपका ये y जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आना है. करेक्ट. बिकॉज ऑफ दैट हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कुछ अलग तरीके से अप्रोच करेंगे. कौन सा तरीका? तो कि इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि x प्लस वाई इक्वल्स टू dx बाई dy, dx और dy, जिससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि dx बाई dy, ध्यान से, dx बाई dy. जब भी हम इस फॉर्म में जाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि p के साथ x आना चाहिए. अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा x, तो मैं x को यहां ले आऊंगा, इज इक्वल्स टू y. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dx बाई dy प्लस p इंटू x इज इक्वल्स टू q. जहां पे p और q जो है वो कांस्टेंट होंगे या फिर सिर्फ फंक्शन ऑफ y होंगे. करेक्ट. तो इसके हिसाब से हमारे लिए p की वैल्यू आएगी -1 और q की वैल्यू आएगी y. द वैल्यू आर वेरी सिंपल, प्रॉब्लम में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आराम से सॉल्व हो जाएगा. लेकिन यहां से आइडिया लगाना कि ये dx बाई dy से होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. दूसरा, आगे बढ़ते हैं तो हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो e रेस टू इंटीग्रल p dy. देखो यहां पे हम लिखते थे p dx,
अब p dy सब चेंज हो जाएगा, करेक्ट। सो p की वैल्यू -1 है, तो e रेस टू माइनस एक्स विल बी योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे ही हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है, फिर हमारी बारी आती है सॉल्यूशन फाइंड करने की। देखो अब सॉल्यूशन जो फाइंड करना है ना, वो वापस से आपको थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ेगा। द सॉल्यूशन इज, कैसे लिखेंगे, तो क्या अब मत लिखना y इंटू आई एफ, अब आएगा x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। ये छोटी छोटी चेंजेस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और अदरवाइज व्हाट एक्चुअली हैपन्स कि जब आप लोगों को एक बार पता चल भी जाए कि अच्छा हाँ ये तो dx बाई dy में है, तो हम थोड़े से फ्लो में आते हैं, है ना, थोड़ी स्पीड में खत्म करने की ट्राई करते हैं, एंड दैट स्पीड हर्ट्स। वो आपको बहुत परेशान करेगी। क्यों? क्योंकि आप जल्दी में ना, आपका ध्यान ये नहीं रहेगा कि यहाँ पे p dx की जगह dy हो जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान नहीं रहेगा कि y आई एफ की जगह x इंटू आई एफ हो जाएगा, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है। ये माइनर चेंजेस विल क्रिएट ट्रबल फॉर अस, और फिर हम कॉन्फिडेंटली करके आते हैं और बोलते हैं कि आंसर रॉन्ग कहां से आ गए। रॉन्ग इसीलिए होता है क्योंकि हम जल्दी में ध्यान रखना भूल जाते हैं कि कहां पे हमें माइनर चेंजेस करने हैं। सो वो चेंजेस ये है सारे। अब x इंटू आई एफ तो माइनस एक्स है, q की वैल्यू कितनी है, y है। सॉरी देखो आई ऑल्सो कमिटेड अ मिस्टेक, सी प्रॉपरली, इंटीग्रल ऑफ p dy है ना, आई ऑल्सो कमिटेड अ मिस्टेक। वही चीज हुई जो मैं आपको कह रहा था, है ना, एंड थैंक गॉड कि मुझे टाइम आते पता चल गया। p dy, p की जगह -1 रखो, -1 डिवाइड करोगे तो इट विल बी e रेस टू माइनस वाई, ना कि माइनस एक्स। दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स। यही सारी चीजें आपकी मैटर करेगी, e रेस टू माइनस वाई डिवाइड प्लस सी, करेक्ट। अगेन यू कैन सॉल्व दिस बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, यहां से तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि y के रिस्पेक्ट में यू हैव टू फिनिश इट, है ना। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आराम से आप लोग कर सकते हो, है ना। सो इंटीग्रल आप लोग करना, लेकिन जो यहां पे मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूं उसे प्लीज ध्यान से समझना कि व्हेन यू गो फॉर dx बाई dy, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स देखे हमने सब dy बाई dx में सॉल्व किए, वेदर वो एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो। फर्स्ट प्रॉब्लम ऐसा आया जिसमें हमें dx बाई dy में जाना पड़ा, है ना, एंड व्हेन यू कन्वर्ट दैट इनटू dx बाई dy ना, तो सारे जो स्मॉल माइनर चेंजेस है ना, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। लाइक यहाँ पे हो जाएगा p इंटू डी वाई, सो आपका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इन टर्म्स ऑफ y आएगा। ऐसे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, है ना, कि अगर आपका फॉर्म कुछ इस तरह से है dx बाई डी वाई प्लस पी ऑफ एक्स इंटू क्यू इक्वल्स टू क्यू, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो कौन से फंक्शन में आएगा, तो इट शुड बी ऑफ अ फंक्शन y। x में पॉसिबल नहीं है, वो अगर dy बाई dx का फॉर्म हो जो ये प्रीवियस प्रॉब्लम में था, तो उसमें x के फंक्शन में आता है, इसमें y के फंक्शन में। ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं फॉर एमसीक्यू, और फिर हम बोलते हैं कि ऐसा तो हमने कभी कुछ टेक्स्ट बुक में देखा ही नहीं, हमने उसको ध्यान नहीं दिया, है तो सही लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया कि जब हम लोग इस तरह का फॉर्म सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ y, और जब हम इस तरह का फॉर्म देखते हैं जिसमें p और q x में है, तो आपका इंटीग्रेटिंग फॉर्म जो है वो भी इन टर्म्स ऑफ x आता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। वंस यू गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जनरल सॉल्यूशन को लिखते वक्त भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि x इंटू आई एफ दैट विल बी इक्वल टू q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। ये मिस्टेक्स हो सकती है, यहाँ y लिख दो या dx लिख दो, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती है। अब करोगे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, इट कैन हैपन, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ सच काइंड थिंग। जैसे आपने देखा मैंने यहाँ पे स्पीड में बहुत जल्दी में p की वैल्यू रखे बिना इंटीग्रेट कर दिया, तो आई विल ऑलवेज गो फॉर एक्स क्यू, बिकॉज आदत हो जाती है ना एक्स में चेक करने की, तो वो फिर हमें यहाँ पे डिफिकल्टी फील होगी, करेक्ट। सो प्लीज ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 को लिखना एंड डू द इंटीग्रेशन प्रॉपरली। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आराम से आपका ये इंटीग्रल हो जाएगा, करेक्ट। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम एंड देन विल सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस, यानी कि जनरल सॉल्यूशन वाले फ्रॉम द एक्सरसाइज। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ है, x dy बाई y dx, इट इज गिवन y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 0।
Now can you solve this particular problem with the help of separable variable separable? So give it a try, थोड़ा सा उसमें थॉट दो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स के एग्जाम में लिखा नहीं होगा. तो लेट्स से y dx इज इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ y x माइनस वाई स्क्वायर, लेट्स से y स्क्वायर माइनस x dy. अच्छा ठीक है, चलो हमने कर लिया. ओ सेपरेबल वेरिएबल में तो नहीं होना है, पॉसिबल ही नहीं है. वेरिएबल सेपरेबल हो ही नहीं सकता क्योंकि वाई स्क्वायर और एक्स को मैं सेपरेट ही नहीं कर पा रहा हूँ. अच्छा आप सोच रहे होगे कि सर सेपरेट तो हो जाएगा ना, डी वाई नीचे ले आओ. अच्छा मैंने डी वाई यहाँ पे ले लिया, करेक्ट है ना. तो फिर ये वाई कहाँ जाएगा? अच्छा वो भी ठीक है, नहीं लेना हमें, उसको नहीं करना. इसके नीचे ले आओ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स ले आओ, वाई इधर ले आओ, डी वाई बाई वाई, वाई वाला हो गया, ये वाई तो इधर आ गया ना. वाई स्क्वायर माइनस एक्स में वाई स्क्वायर तो कैसे रिमूव करोगे? नॉट पॉसिबल. सो अगेन वेरिएबल सेपरेबल इज नॉट एप्लीकेबल हियर. होमोजीनियस का तो सवाल ही नहीं है, पावर में ही डिफरेंस है, तो ऐसे भी नहीं होना है. वो तो बात की बात दूर होगी, बहुत दूर हो गई. अब इसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो लीनियर में वापस dy बाई डी एक्स और dx बाई डी वाई दोनों केस ध्यान में रखने हैं. अच्छा चलो ठीक है. अगर मान लो मैंने dy बाई डी एक्स सोचा, dy बाई डी एक्स, dy ऊपर रह रहा है मतलब उसके साथ वाला फंक्शन नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा. अगर मैंने इसको रिवर्स मतलब स्प्लिट किया तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते ना. हाउ कैन वी राइट y बाई वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स? ऐसा तो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, मतलब कि ये सेट नहीं हो रहा है. अच्छा अगर इसका उल्टा होता तो सेट हो जाता, इजंट इट? अगर उल्टा होता तो यानी कि समथिंग लाइक दिस, dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई वाई. तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स बाई वाई dx बाई डी वाई. ब्रिंग दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये देखो आ गया dx बाई डी वाई माइनस 1 बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वाई. ये हो गया आपका लीनियर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ dx बाई डी वाई वाला, है ना. तो इसके हिसाब से आपके लिए p की वैल्यू माइनस 1 बाई वाई और q की वैल्यू y. इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस 1 बाई वाई डी वाई, तो वो हो जाएगा e रेस टू माइनस लॉग y. पावर ऊपर जाएगा तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा 1 बाई वाई, क्योंकि y का पावर 1 होगा, है ना. तो if विल बी 1 बाई वाई. अब ये if आपको जनरल सॉल्यूशन में रखना है. कैसे? तो क्या x इंटू if इज इक्वल्स टू q दैट इज y इंटू if dy प्लस c. तो देखो आंसर भी आ गया, x बाई वाई इक्वल्स टू वाई वाई कट, dy का हो जाएगा वापस y प्लस c. तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जनरल सॉल्यूशन. समझ में आ रहा है ना. सो देखो इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड ओवर हियर अगेन इज कि किस तरह से हमें सारी चीजों को टेक्निकली करना है ना. यू जस्ट लुक एट द डिफरेंशियल इक्वेशन, थिंक ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, थिंक ऑफ होमोजीनियस, थिंक ऑफ लीनियर. इन लीनियर dy बाई डी एक्स एज वेल एज dx बाई डी वाई. ये सारी प्रोसेस आपको आपके माइंड में क्विकली करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स, है ना. अगेन आई एम टेलिंग कि आपको दिया हुआ नहीं होगा, सिंपली बोलेंगे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच मेथड विल बी इजी और विच मेथड विच यू कैन अप्लाई टू गेट द करेक्ट आंसर, है ना. या फिर आप जो भी मेथड अप्लाई करो वो सही होनी चाहिए. उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको मेजरली प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही आएगा, है ना. और एक ऐसे पॉइंट पे आओगे जब आप लोग क्वेश्चन देख के ही सोचना शुरू करोगे ना, तब आप लोगों को वो चीज अच्छी रहेगी कि हाँ अब मैं डायरेक्टली जो भी मेथड सिलेक्ट करूंगा विल हेल्प मी टू गेट टू द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. करेक्ट. अभी तो फिलहाल टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है तो हम ज्यादा उसमें कुछ वो नहीं कर पा रहे, बट डेफिनेटली व्हेन वी कम अक्रॉस मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज तब वैसा नहीं दिया होगा. दैट टाइम वी विल सी क्या होता है. And this is equals to y. So x plus 3y square dy by dx equals to y. अच्छा चलो ठीक है. होमोजीनियस में तो हम ऐसे ही मुझे पता चल गया. वेरिएबल सेपरेबल में अगर देखने जाऊं तो ये सेपरेट नहीं होना है, तो लीनियर में ही रुकना है. अब लीनियर में dy by dx या dx by dy, तो सेम मेथड जैसे यहाँ था. तो अगर जैसे आपने dy by dx तो है ही हमारे पास, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हम कुछ रिवर्स में मतलब स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, तो दैट्स नो मीनिंग टू डू सच वे.
तो फिर ऐसा करते हैं कि इसको लिख देते हैं dx बाई dy, है ना, मतलब हमने dx और dy उधर दे दिया और y नीचे ले लेते हैं, सो x प्लस 3y स्क्वायर बाई y। ये मैंने जो लिखा ना वो एकदम सही है, डेफिनेटली dx नीचे आएगा ना तो बराबर है, सही। अब क्या करें तो के dx बाई dy इज इक्वल्स टू y, दोनों को सेपरेटली दे दो, आई कॉल्ड इट एज रिवर्स एलसीएम, देयर इज नो सच वर्ड बट आई कॉल्ड इट एज रिवर्स एलसीएम, प्लस 3y एलसीएम करते उसका उल्टा करना है तो रिवर्स एलसीएम, नो सम लॉजिक वॉजिक कुछ है नहीं, ऐसे बस नाम चिपका दिया है मैंने। तो x बाई वाई प्लस 3y, है ना। अब ब्रिंग दिस x बाई वाई ओवर अदर साइड, तो ये हो गया आपका फॉर्म dx बाई dy माइनस 1 बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 3y। अब इन दोनों में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा है, देखो वापस से p की वैल्यू तो माइनस 1 बाई वाई है, आइए फाइंड करोगे 1 बाई वाई आएगा, इस पर रखोगे x इंटू 1 बाई वाई इक्वल टू 3y इंटू 1 बाई 3 बाहर आ जाएगा, y कट होके वापस dy, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस, इतना कोई ज्यादा चेंजेस आएगा नहीं। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर, तो p की वैल्यू माइनस 1 बाई वाई और q की वैल्यू 3y। यहां से फर्दर आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।